بھائی کیا ہومیوپیتھک میں رنگ بکھیر دیا آپ نے، کمال ہے. اچھا ماشاءاللہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اب نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کے روئے رواں جناب محمد علی صاحب ماشاءاللہ یہاں بیٹھے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا. اس کے ساتھ ساتھ بزم کشش کی محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ بھی تشریف لے کے آ گئی ہیں. ہمارا ملک کا ایک عظیم ستارہ، شاعر بھی، ایڈیٹر بھی. اور بھی تیزی سے اب ہم میڈیکل یونیورسٹیز اور کراچی کے پرائیویٹ یونیورسٹیز اور گورنمنٹ یونیورسٹیز میں اس ایجوکیشنل پروگرام کا ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائس آف ہیلتھ کے لیے کراچی کی ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر آج سے پہلے کراچی کی کوئی بھی ایسوسیشن جو ہے وہ لیکچر موٹیویشنل کے لیے نہیں گئی ہے. اور میں تمام اس کو کریڈٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ڈاکٹر شفیق چشتی کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس وائس آف ہیلتھ کے پلیٹ فارم کو ایک فاؤنڈیٹ کیا، اس کی بنیاد رکھی. تو ڈاکٹر شفیق چشتی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. دیکھیں عتیق انصاری صاحب نے محفل کو گلزار بنا دیا. اچھا ہمارے جو وائس آف ہیلتھ کے سی نہیں یہ نکلیں گے نہیں، بات طے ہو چکی ہے، سیٹنگ ہے. تو شفیق چشتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میری طرح آپ بھی دل کی بڑاس نکالیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. گزارش یہ ہے کہ شاعر تو نہیں ہوں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن چونکہ پروگرام اپنا ہے تو ایک کوشش کر رہا ہوں چند شعر کہنے کی. اور ظاہر ہے کہ ان شعروں میں بقول طرح عمر صاحب کے لیے وزن ہو یا نہ ہو برداشت کر لیجیے گا، کوشش ہے یہ. تو بجائے ایسا سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دلی طور پر مشکور ہوں. آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارا ایک دفعہ اور حوصلہ بڑھایا اور ہم انشاءاللہ ان پروگرامز کو آگے بڑھاتے رہیں گے. گلستانی رنگ و نور میں پرندے ہیں بے شمار، یہ دوا ہے BOH بے مثال. بھرپور تالیاں. اقوام کی عمارت پہ جھنڈے ہیں بے شمار، اقوام کی عمارت پہ جھنڈے ہیں بے شمار، مثل سبز پرچم کے BOH بے مثال. اور چونکہ ساجد بھائی کی مہربانی سے یہاں ہم عیسیٰ لیب میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈاکٹر شجاع صغیر خان نے ایک بڑا کارنامہ اور انجام دے دیا. سب ایک پرزور تالیاں بجا دیجیے. ہومیوپیتھک میں جو لوگ ہومیوپیتھک کی دوائیاں کم استعمال کرتے ہیں اور اس کی فائدیت سے کم واقف ہیں، تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے ابھی ڈاکٹر باسط اور دوسرے صاحب عتیق انصاری صاحب نے ایک ایک دوائی کا بینیفٹ بھی بتایا ہے. 3-4 نصیحتیں کرنا چاہوں گی کہ میرے خوبصورت صحافی حضرات، چینل والے اور میرے ڈاکٹر حضرات، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو شاباش دیجئے، آپس میں محبت کیجئے
आपस में एक दूसरे का साथ दीजिए। ये शायरी की मत में भी कह रही हूँ मैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपने बेहतरीन दोस्त छोटे भाई डॉक्टर शुजा सगीर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने मुअज़्ज़िज़ लोगों में मुझे बोलने के लिए बुला लिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम जो बस सिर्फ 2 मिनट मेरे ये है कि हम जिस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो कराची के लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, हम इस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो कोटा सिस्टम हो, चाहे मुकामी पुलिस होनी चाहिए या 140A के तहत अख्तियारात मिलने चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो भी कराची का मसला है, कराची के लोगों के साथ जो जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में मेरी आवाज में इतना असर नहीं होगा अगर ये शोरा हजरात कराची की आवाज को अपनी आवाज में जब भेजेंगे तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में, पूरी दुनिया में इसका असर होगा। मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा आज कि तमाम शोरा हजरात कराची की आवाज को अपने शेर और शायरी में बुलंद करें ताकि इसको बहुत तेजी के साथ सुना जा सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा बेचैनी से इंतजार। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का कोई प्रोग्राम हो, आप उन्हें वहाँ देखेंगे। कोई बड़ा मुशायरा हो, उसकी निजामत आपकी जिम्मेदारी होती है। वीनस चैनल हो या कोई और चैनल, मेट्रो हो, जहाँ जहाँ आप चले जाते हैं वहाँ वहाँ नकूस छोड़ के चले आते हैं। ये कमाल है, ये कमाल है उनका। और जब शायरी करते हैं, सहाफ़ी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इरशाद भाई आपको तो पता है, लामा वाला रोज़नामा रहबर शुरू किया था। पहले तो इतनी खूबसूरत महफिल सजाने पर डॉक्टर साहब और मेरे बड़े भाई शफीक चिश्ती साहब, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और यहाँ इतने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, मैं किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ, तो वो असलम भाई आपकी इजाज़त से जाकिर भाई। मेरे वतन का सफ़र बद से बदतरीन में है। मेरे वतन का सफ़र बद से बदतरीन में है, फ़कत ये सर ही सलामत है, हर ज़मीन में है। मेरे वतन का सफ़र बद से बदतरीन में है, फ़कत ये सर ही सलामत है, हर ज़मीन में है। और इसीलिए तो ज़्यादा कमाना पड़ता है, इसीलिए तो ज़्यादा कमाना पड़ता है। मोहम्मद अली भाई, उन माफियाज की निशानदेही की है जो 77 साल से लूट के खा रहे हैं कि मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, हर जमीन में है। के अर्ज वो दुआ करते क्या करते कि दिल पे जख्म गहरा खुद मेरा हमराज देता है, कि दिल पे जख्म गहरा खुद मेरा हमराज देता है। पलट कर देखती हूँ तो नजर आता नहीं कोई, पलट कर देखती हूँ तो नजर आता नहीं कोई, रहे तन्हाई में कोई मुझे आवाज़ देता है, रहे तन्हाई में कोई मुझे आवाज़ देता है। और एक गज़ल के चलते हैं कि हो गया इश्क तो छुपाएं क्या, हो गया इश्क तो छुपाएं क्या, बादशाही भला दिखाएं क्या, बादशाही भला दिखाएं क्या। मेरे बुजुर्ग मेहमान गिरामी हजरात, बहन भाइयों और मेहमान हजरात, अस्सलाम वालेकुम।
जनाब अली, मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम ज़हरुल हसन है। मैं मास्टर अल्ताफ़ हुसैन का फर्जंद हूँ। ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है। मेरे वालिद साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हुक्म पे 3 जून 1947 को पहला कौमी परचम खुद अपने हाथों से तैयार करने का एजाज़ हासिल किया था, जिस पर हमें और पूरी कौम को फ़ख्र होना चाहिए। और मेरे वालिद साहब की कौमी जुम्मान पर 23 मार्च 2023 को मेरे वालिद साहब की और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने खूबसूरत महफिल सजाई है और होम्योपैथिक के हवाले से ये पहला बहुत ही कामयाब मुशायरा भी मुनक़िद किया है और माशाल्लाह बहुत शोहरत को शायरान किया। और मैं ये समझ रहा था कि जो हमारे शोर हैं वो होम्योपैथिक के पस मंज़र में शायरी करेंगे, लेकिन यहाँ उससे हटके भी अशार सुनाए गए। तो मैं भी इंतकामन आपको दोनों पहलुओं से अपने अशार सुनाऊँगा, क्योंकि मैंने खुसूसी तौर पर शुजा भाई से की दवा बढ़कर ऑक्सीजन की हो कमी जिसको ऑक्सीजन की हो कमी जिसको सल्फ काली दवा पिला उसको, सल्फ काली दवा पिला उसको, कम ज़्यादा बदन में हो आज़ा, कम ज़्यादा बदन में हो आज़ा, फिर तू KF भूल मत जाना, फिर तू KF भूल मत जाना। ये सारी अदबिया आपकी हैं और उसके हवाले से जब लगे तुमको खूब कमज़ोरी, जब लगे तुमको खूब कमज़ोरी, दूर इसको करेगी KP, दूर इसको करेगी KP। थैंक यू। बात होगी। डॉक्टर राना ताहिर अमीन साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ हमारे साथ हैं, और अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो मैं भी इस सफ़ में मुकाबला कर रहा हूँ। इसी दुआ और इसी ख्याल के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। वाखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायदे होम्योपैथी डॉक्टर शुजा सगीर खान का। कि बिन बुलाया मेहमान हूँ, क्योंकि कहीं पर मेरा जिक्र नहीं है, फिर भी मैं आपको जो है ना वो आपने फोटोग्राफ भी भेजा था ना, उसमें तो 2 आदमी थे। नहीं, बहुत सारे 3 थे। तो बहरहाल हमें से नहीं है कोई गरज, जिस दिए पे जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो वो बात ये कि मैं थोड़ा सा मौजूदा हालात पे 1-2 चीज़ें कहूँगा आपसे कि जिंदगी सिर्फ रंजो गम तो नहीं, जिंदगी सिर्फ रंजो गम तो नहीं, जिंदगी में मज़ा भी कम तो नहीं। इल्म का जानना सही लेकिन आगही का अजाब कम तो नहीं। और हम जो बिला वजह एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और बुरा भला कह रहे होते हैं नेट पर, फेसबुक में, उन लोगों के लिए जो हमें जानते भी नहीं है, तो उनके लिए मेरा अर्ज़ है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दिए जलाएं मोहब्बत के रोशनी कर लें, दिए जलाएं मोहब्बत के, सुरभाई देखिए, दिए जलाएं मोहब्बत के रोशनी कर लें, बढ़ाए हाथ चलो फिर से दोस्ती कर लें। अगर ये मान भी लें हम, तो आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह को वकील समझते हो? वो हर दफ़ा तुम्हें हज का सवाब देगा। देखिए मेरे दोस्त अमेरिका में अभी भी गया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ, तो लिपट के रोते थे कि डॉक्टर साहब हमारी वालदा चले गई, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो मैंने उनको समझाया बेवकूफ़ों को, माँ कभी नहीं मरती, माँ हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहती है और तुम्हारे अतराफ रहती है। इज़हार का, वफाओं का, अज़मत का है निशान, इज़हार का, वफाओं का, अज़मत का है निशान। जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ, दामन में माँ के सिर्फ वफाओं के फूल हैं, हम सारे अपनी माँओं के पैरों की धूल हैं। औलाद के सितम इसे हंसकर कबूल हैं, बच्चों को बख्श देना ही माँ के उसूल हैं। इसकी
मोहब्बतों को करूं किस तरह बयां, जिंदा है जब भी माँ वो मर जाए जब भी माँ, इस पर ये दिल निसार है जहाँ भी निसार है, दुनिया में प्यार है तो फकत माँ का प्यार है, इसकी मोहब्बतों का कहीं कुछ शुमार है, ये ऐन खास रहमते परवरदिगार है, नेमुल बदल जमाने में इसका कोई कहाँ, जिंदा है जब भी माँ वो मर जाए जब भी माँ, रब्बे जहां ने माँ को ये अजमत कमाल दी, इसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी, कुरान में माँ के प्यार की उसने मिसाल दी, जन्नत उठाई माँ के कदमों में डाल दी, शफ़क़त का है ठिकाना मोहब्बत का आशियाँ, जिंदा है जब भी माँ वो मर जाए जब भी माँ, और हम लोगों ने माँ के साथ क्या किया ये देखिएगा। और तरफ बंद आखिर में सुना रहा हूँ, दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया, दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया, गिरने लगा तो माँ ने मुझे फिर खड़ा किया, 10 लाल इसने पाल दिए उफ नहीं कहा, हम एक माँ को पाल न पाए ये क्या किया, कुर्बानियों का नाम वफाओं की दास्तां, जिंदा है जब भी माँ वो मर जाए जब भी माँ, जिंदा है जब भी माँ वो मर जाए जब भी माँ। की और डॉक्टर शुजा साहब की कह रहे हैं कि उदासियों में चमक खुशी की फिजा में फसलें बहार देंगे, उदासियों में चमक खुशी की फिजा में फसलें बहार देंगे, हम आ गए तो कलियों गुल किया ये सारा गुलशन निखार देंगे, उदासियों में चमक खुशी की फिजा में फसलें बहार देंगे, हम आ गए तो कलियों गुल किया ये सारा गुलशन निखार देंगे, तामीरों से बनी है अपनी नगासिबों के हमायती हैं, नामिरों से बनी है अपनी नगासिबों के हमायती हैं, मोहब्बतों के सफीर हैं हम अदावतों में भी प्यार देंगे, नामिरों से बनी है अपनी नगासिबों के हमायती हैं, नामिरों से बनी है अपनी नगासिबों के हमायती हैं, मोहब्बतों के सफीर हैं हम अदावतों में भी प्यार देंगे। देखिए अगर कड़ा वक्त है तो ये भी बसीरतों से ही सैल होगा, अगर कड़ा वक्त है तो ये भी बसीरतों से ही सैल होगा, अगर न जज्बातियत के नारे लगे तो जीते जी मार देंगे, अगर कड़ा वक्त है तो ये भी बसीरतों से ही सैल होगा, अगर न जज्बातियत के नारे लगे तो जीते जी मार देंगे, सजाए दारो रसन से सहमे न हमको जेलें डरा सकी थी, सजाए दारो रसन से सहमे न हमको जेलें डरा सकी थी, सो भी हमको न तुम डराओ कि अब भी हम एतबार देंगे, सो भी हमको न तुम डराओ कि अब भी हम एतबार देंगे, अगर न काम आ सकेंगे जनता के तो न हायल रहेंगे हरगिज़, अगर न काम आ सकेंगे जनता के तो न हायल रहेंगे हरगिज़, ये तख्त पैरों से रोन देंगे ये ताज ठोकर में मार देंगे, अगर न काम आ सकेंगे जनता के, अगर न काम आ सकेंगे जनता के तो न हायल रहेंगे हरगिज़, अगर न काम आ सकेंगे जनता के तो न हायल रहेंगे हरगिज़, ये तख्त पैरों से रोन गुल का ऐदे तरक्की नजर में है, देखिएगा गुंजाओ गुल का ऐदे तरक्की नजर में है, गुलची पे एतबार किए जा रहा हूँ मैं, गुंजाओ गुल का ऐदे तरक्की नजर में है, गुंजाओ गुल का ऐदे तरक्की नजर में है, गुलची पे एतबार किए जा रहा हूँ मैं, देखिएगा गुंजाओ गुल का ऐदे तरक्की नजर में है, गुलची पे एतबार किए जा रहा हूँ मैं, देखिएगा मेरे सलाम भाई मेरे उर्दू ने पहल किया है जवाब में, मेरे उर्दू ने पहल किया है जवाब में, अपने दिफा में वार किए जा रहा हूँ मैं, मेरे उर्दू ने पहल किया है जवाब में, मेरे उर्दू ने पहल किया है जवाब में, अपने दिफा में वार किए जा रहा हूँ मैं, शायद कोई मिसाल बने सादगी मेरी, शायद कोई मिसाल बने सादगी मेरी, जश्न तरफ निसार किए जा रहा हूँ मैं, शायद कोई मिसाल बने सादगी मेरी, जश्न तरफ निसार किए जा रहा हूँ मैं, और पहले ही कम नहीं ये गरीबा है चाक चाक, पहले ही कम नहीं ये गरीबा है चाक चाक, दामन भी तार तार किए जा रहा हूँ मैं, पहले ही कम नहीं ये गरीबा है चाक चाक, पहले ही कम नहीं ये गरीबा है चाक चाक, पहले ही कम नहीं ये गरीबा है चाक चाक, दामन भी तार किए जा रहा
का वकाल है और राज आश्कार किए जा रहा हूँ मैं। मेरे उर्दू ने पहल किया है जवाब में, मेरे उर्दू ने पहल किया है जवाब में, अपने दिफा में वार किए जा रहा हूँ। और कोई एक सुना दूँ?